Hello and welcome back to my YouTube channel, and we are going to continue with our first chapter of political science. And in this video we are going to discuss about the topic terrorism. The attack on the New York Trade Center and the Pentagon in Washington DC on 11 September 2001, popularly referred to as 9/11 attack, brought in a new form of terrorism in the world. The concept of terrorism is not new. Terrorism has been defined as the use of violence or the threat to use violence with an intention to create panic in the society and pursue political, religious, or ideological goals. Generally, government institutions and officials are the primary target. So on 11 September 2001, United States of America was attacked by terrorists. So this terrorist has mainly targeted institutions like New York Trade Center, then Pentagon in Washington DC. So these are the important centers or important institutions for USA. See, Pentagon is the headquarters, defense headquarters. United States का Pentagon is the defense headquarters of United, which is located in Washington DC. तो if मतलब ऐसे अटैक आपके डिफेंस के हेडक्वार्टर्स पे होता है, then it is a big thing. Okay, then after this we see they have written popularly referred to as a 9/11 attack. So as I have told in my previous video कि जो वो लोग अमेरिकन कॉन्वेंशन में वो लोग लिखते हैं, पहले मंथ पहले लिखते हैं, देन दे राइट डेट, और इसी के वजह से इसको 9/11 अटैक भी बोला जाता, ना कि ये 9 नवंबर नहीं है, 11 सितंबर है, बट मंथ पहले लिखने के वजह से ये पॉपुलरली 9/11 अटैक इसको रेफर किया जाता है. देन दिस ब्रॉट इन अ न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड. सो टेररिज्म ऐसे नहीं था कि टेररिज्म इज व्हाट. टेररिज्म इज यूजिंग वायलेंस, और टेररिज्म इज क्रिएटिंग थ्रेट बाय यूजिंग वायलेंस. मतलब पूरे सोसाइटी में थ्रेट पैदा करना, पब्लिक में थ्रेट पैदा करना, पैनिक क्रिएट करना बाय यूजिंग वायलेंट वेज. एंड जो भी आपके जो टेररिस्ट के जो रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल या फिर पॉलिटिकल जो भी गोल्स, एम्स जो होते हैं, उनको वो कंप्लीट करने होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस दे ट्राई टू क्रिएट पैनिक इन द सोसाइटी. सो ये जो अटैक हुआ, इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं एक न्यू फॉर्म ऑफ टेरर. दिस अटैक ब्रॉट इन अ न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म. So there is a difference between traditional day terrorism and modern day terrorism. So traditional day terrorism में क्या होता था, mostly the institutions of government and जो भी officials है, they were the main target, they were the primary target. So सबसे पहला अटैक करना होता अगर टेररिस्ट को, तो वो लोग मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और उनके जो भी ऑफिशियल्स है उन पे करते थे. बट मॉडर्न डे टेररिज्म इज अ डिफरेंट. The first instance of modern day terrorism is considered to be the attack on the Israeli Olympic team at Munich in 1972 by the Palestinians. Since then, terrorist organizations and groups have indulged in airplane hijackings, bombings and assassination of political leader. So जो modern day terrorism का जो first instance हम लोग देख सकते हैं वो था म्यूनिच में. जो इज़राइल की ओलंपिक टीम थी, उनको जो पैलेस्टीनियंस ने वो टीम पे अटैक किया था. दिस इंस्टेंस टुक प्लेस इन 1972. सो तब से जो मॉडर्न डे टेररिज्म का वो फर्स्ट इंस्टेंस था, और तब से हाईजैकिंग, बॉम्बिंग्स एंड असैसिनेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स. ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टेररिज्म मेनली टारगेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट. The terrorists usually fought for the rights of common specific people. The terrorist activity was usually associated with the separatist movement. So जो पहले terrorist activity होती थी तो वो किसी एरिया के लिए होती थी, मतलब उनको वो पर्टिकुलर एरिया चाहिए, एंड जो भी उन स्पेसिफिक ग्रुप्स है लोगों के, उनके राइट के लिए वो लोग झगड़ते थे. और इनके जो वेज थे वो हाईजैक करना प्लेन्स को, बॉम्ब कहीं पे रख देना, जब या फिर पॉलिटिकल लीडर्स का असैसिनेशन करना. सो assassinating the political leaders. So now we will start with the do you know part. Before that I will describe a bit about 9/11 attacks. So 9/11 attacks में भी क्या हुआ था, जो टेररिस्ट थे उन्होंने कुछ जो प्लेन्स थे वो हाईजैक किए थे
और इनके जो मेन टारगेट से जैसे कि न्यूयॉर्क का ट्रेड सेंटर, वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं। तो ऐसे 3 से 4 प्लेन्स ये लोगों ने हाईजैक करके ये लोगों ने मतलब क्रैश करवाए थे ये बिल्डिंग्स के ऊपर। एंड उनमें से कोई एक जगह पे ठीक से वो लोग मतलब उन लोगों का टारगेट प्रॉपरली क्रैश नहीं कर पाया था वो प्लेन। और लाइक यूनाइटेड स्टेट्स का हेडक्वार्टर्स वगैरह अगर आप देखोगे डिफेंस का, तो वो अगर मतलब वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी रहती है, फिर भी लाइक प्लेन वगैरह क्रैश हुआ, देन ये सब एक मैसेज जाता है जो वर्ल्ड में, तो ये एक पैनिक हो जाती है सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड को एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। सो दीज वर द मेन जो एम था उनका कि टू क्रिएट पैनिक और थ्रेट। सो अभी जब यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अटैक हुआ तो जो प्रेसिडेंट है उनके, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ही इज़ एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। सो हम लोगों ने जो ऊपर देखा जो यही चैप्टर में जो कुवैत वाला वॉर देखा था, उसमें जो थे जॉर्ज एच बुश, ही ही इज सन ऑफ, सो जॉर्ज डब्ल्यू बुश इज सन ऑफ जॉर्ज एच बुश। सो जॉर्ज एच बुश के बाद जो जॉर्ज एच बुश के बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्लिंटन होते हैं। वो 2 इयर्स की उनकी जो भी टर्म है वो पूरी करते हैं। 2 इयर्स टर्म मतलब जैसे कि हमारे इधर 5 इयर्स की टर्म रहती है, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 4 ईयर की टर्म रहती है। एंड वो और कोई भी प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रह पाता है। मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, जैसे कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ नहीं कि 2 बार ही टर्म है। सो वी आर हम लोग मतलब इलेक्शन कितनी भी बार लड़ सकते हैं, बट टर्म 5 इयर्स की ही रहती है। सो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। वैसे उधर टर्म 4 ईयर की रहती है और 2 ही बार कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। पर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक ही प्रेसिडेंट ऐसे हुआ जिन्होंने मोर देन 2 टर्म्स उनके सर्व किए, बिकॉज तभी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। मतलब और उस सिचुएशन में आप इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते। देन बिकॉज ऑफ दिस ही सर्व मोर देन 2 टर्म्स। और उनका नाम आप गूगल पे सर्च करो एंड सर्च करने के बाद कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। So we will start with this. Do you know the war on terror is a military campaign launched by the American President George W. Bush in response to 9/11 terrorist attack by Al-Qaeda. So ये 9/11 का terrorist attack जो है वो Al-Qaeda ने किया था। और जब 9/11 जो अटैक हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, तो अमेरिका ऑब्वियसली चुप नहीं बैठेगी। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी द वॉर ऑन द टेरर इंक्लूड्स द अफगानिस्तान। सो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर ऑन टेरर। इसमें क्या था, ये ऑपरेशन में जो भी इनके अलकायदा के या जो भी हम लोग बोल सकते हैं अड्डे टाइप से होते हैं, उधर ये लोगों उन्हें बॉम्ब्स वगैरह मतलब उनको पूरा जो भी उनके लोग हैं उनको मारा था। सो द वॉर ऑन टेरर इंक्लूड्स द अफगानिस्तान वॉर 2001 एंड द war in Iraq 2003. The United States led military offensive was supported by Britain, Turkey, Germany, Italy, Netherlands, France and Poland. So next we will see modern day terrorism is different in several ways. The terrorists today are not fighting for a specific group in a specific geographic area. The terrorist organizations are motivated and inflamed by an abstract religious ideology. The fight is for abstract goals and the operations are global in nature. After the 9/11 attack, similar attack took place in Bali. So यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है this their fight is for abstract goals and operations are global in nature. So इनका operation global in nature ऐसे क्यों लिखा है? Because see, in modern day terrorism, if we will take attack 2008 Mumbai attacks, 26/11 popularly known as 26/11. So in that if you will see, Taj Hotel was attacked by terrorists. So सिर्फ ताज होटल में सिर्फ इंडियंस ही नहीं मारे गए थे या ऐसे, तो ताज होटल में बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट जो आए थे वो लोग भी थे और जो भी अदर मतलब बहुत सारे नेशंस के थे। सो इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली इंडिया।
तो इनका जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी, जो भी रिलीजियस आइडियोलॉजी, उसके वजह से ये लोग अटैक करते हैं. सो मॉडर्न डे टेररिज्म इज़ डिफरेंट इन सेवरल वेज. सो ये जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बहुत ही इन्फ्लेम किया जाता है बाय दी एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजीज, लाइक इफ़ यू विल अटैक हियर देन यू विल गो इन टू हेवन एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स. सो ये बहुत देन बिकॉज ऑफ दिस we can see, as a result of this we can see these attacks place first was similar attacks took place in Bali in 2002, like similar to 9/11 attacks. So Bali in 2002, Madrid in 2004, London 2005, and Mumbai 2008.